आज सॉल्व कर रहे हैं CSIR UGC नेट 2020 का पेपर। पहले कुछ वीडियोस में 36 तक सॉल्व हुआ है, सो उसके बाद से कर रहे हैं। सो विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू। 4 स्टेटमेंट दिया हुआ है। इन जैसे सवालों में आपको अलग अलग से सबका ट्रीटमेंट करना पड़ेगा। तो चलिए करते हैं। तो पहला, एवरी इवन इंटीजर n ग्रेटर देन इक्वल 60 डिवाइड्स दिस। सो लेट n इक्वल टू 16. Okay, so n minus 1 factorial plus 3 equal to 15 factorial plus 3. Now 15 factorial ये जो ये इवन है और 3 है ऑड, सो 15 फैक्टोरियल प्लस 3 एक ऑड नंबर होगा. नाउ n इक्वल टू 16 एक ऑड, सो इवन नंबर डजंट डिवाइड ऑड, सो नंबर 1 फॉल्स हो गया. नंबर 2 में चलते हैं. अब एवरी ऑड इंटीजर n ग्रेटर देन इक्वल 16 डिवाइड्स n माइनस 1 फैक्टोरियल. सो एवरी ऑड इंटीजर n ग्रेटर देन इक्वल टू 16 अगर दिया हुआ है, सो लेते हैं n इक्वल टू 17. सो n माइनस 1 फैक्टोरियल हो गया 16 फैक्टोरियल. सो 17 इज अ प्राइम, डजंट डिवाइड 16, तो ये भी गया. एवरी इंटीजर n ग्रेटर देन इक्वल टू 16 डिवाइड्स n माइनस एवरी इवन इंटीजर. ठीक है, इवन इंटीजर मतलब मान लीजिए 16 फिर से लेते हैं. n माइनस 1 15 फैक्टोरियल. 16 क्या है, 2 इंटू 8. 2 एंड 8 आर प्रेजेंट इन 15 फैक्टोरियल, तो ये डिवाइड करता है. ओके, लास्ट n ग्रेटर देन इक्वल टू 16 जो दिया हुआ है, सो यहाँ पर ले लेते हैं 16 n स्क्वायर 256 इवन एंड n फैक्टोरियल प्लस 1 हो गया 16 फैक्टोरियल प्लस 1. तो 256 है इवन और ये हो गया ऑड. इवन ऑड नहीं होता है, सो यहाँ पर ओनली ऑप्शन C और 3 is correct. Next, 38. X be a non-empty set and Px be a set of all subset of X. On Px, define two operations asterisk and delta for the following. AB belongs to P of X, A cross P and AB. Okay, so Px is a group under this is a group but not under this. So group का ही डायरेक्ट पैटर्न को निकालना है. तो इसको कैसे करेंगे, इसके लिए थोड़ा सा एक्स्ट्रा जगह चाहिए, सो शायद ऊपर हमें मिल जाए. हाँ, नाउ इसका मतलब है सिमेट्रिक डिफरेंस. We need to verify that A symmetrically difference between B, A union B, A intersection B, X, Px. So closure property satisfies. Again, this is the closure. ये अगर लेंगे तो यहाँ से भी लिख सकते हैं. So this is associative. नेक्स्ट, एम्प्टी सेट के लाइन देंगे तो यही है. सो ए यूनियन ई इंटरसेक्शन बी इक्वल टू ए. सो आइडेंटिटी एलिमेंट एग्जिस्ट. ये 3 हो गया. सो ऑल एलिमेंट्स आर इन दिस केस, और ये भी अगर ले लेंगे, सो दिस इज दिस. सो यहाँ पर सारा इन्वर्स भी होता है. सो P ऑफ X इज अ ग्रुप अंडर दिस ऑपरेटर. सो सिमिलरली इसको भी ऐसे करना है. दिस इज ए इंटरसेक्शन B. सो क्लोजर हो गया, एसोसिएटिव भी हो गया. E equal to A. So identity element exists A. तो यहाँ से which is not possible, ये है A intersection B equal to, which is not possible. So inverse property does not exist. So Px not a group. Under the third part, asterisk के साथ नहीं है, इसके साथ है. C is the answer. 39. Phi n is a cardinality of the set A given 1
less than equal to a less than equal to n, so where a of n denotes the GCD of a n greatest common divisor, then which of the following is true? So इसको हम लोग को एक एक करके करना पड़ेगा. So sign is the cardinality of the set. So we need to find the wrong statement. So we have for every prime. So in this case, and if you are wondering what is this, this is a phi. This is a small phi. Okay. Okay. So now there exists infinitely many n such that phi n equal greater than phi n plus 1, whether it is correct or not. So we have there 4. So there are infinitely many primes. There are infinite primes. Okay. Infinite primes. So if we fix n equal to p, then we get the infinitely many primes satisfying that phi p greater than phi p plus 1. So this is the correct statement. Option 1. This is structure. So option 1 is incorrect. 1 cross 2. There exist infinitely many n such that phi n less than n plus 1. Phi n less than n plus 1. If we fix n plus 1 equal to p now, so then we get infinitely many primes satisfying this condition. That is, there exist infinitely many n ऐसे है इस सिस्टम में जिसकी वजह से phi n less than phi n plus 1 हो रहा है. So this is a correct statement. So option 2 is incorrect. So सब correct हो रहा है, हमें wrong ढूंढना है. थर्ड स्टेटमेंट अगर हम लोग देखेंगे, थर्ड स्टेटमेंट में दिया देयर एग्जिस्ट n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर सच दैट n ग्रेटर देन 2 फॉर ऑल n ग्रेटर देन n देन phi n लेस देन phi n. तो इसमें क्या होगा, n ग्रेटर देन 2 फॉर ऑल n. सो मान लेते n इक्वल टू 6 ले लिया. सो phi 6 भी 2 हो जाएगा. ओके, सो phi कैपिटल N इज लेस देन phi स्मॉल n. So this is a correct statement. Since we need the wrong statement, तो 3 भी incorrect है. So obviously fourth one is directly correct. Okay, so phi n has a family of many limit points. Obviously many limit point तो होगा. So n equal to अगर p लेंगे, so this limiting value, so limit p tends to infinity, p minus 1 by p तो 1 आएगा. So n equal to 2p लेकर भी इस तरीके से क्रॉस चेक करके देख सकते हैं. और टोटल वैल्यू में हर एक के लिए एक एक पॉइंट आएगा. सो देर आर फाइनाइट मेनी लिमिट पॉइंट्स बिकॉज देर आर फाइनाइट मेनी स्ट्रक्चरल प्रॉब्लम कैन बी एसोसिएटेड. सो इसका आंसर है 4. नेक्स्ट क्वेश्चन. फॉर एनी टू matrix spaces x dx and y dy, a map of fx is said to have a, यहाँ पर एक क्लोज मैप है. और तभी होगा जब f x की तरफ क्लोज होगा. देन ff is also closed on y. ठीक है. सो फॉर एनी सबसेट ऑफ b of a matrix space, b is given by in the induced matrix. So this matrix x cross y is given by this max of this. So which of the following are true? ठीक है. तो यहाँ पर में करना क्या है. सो एक बार सबसेट के हिसाब से पूछा है. द प्रोजेक्शन मैप, सपोज दैट इफ एक्स इक्वल टू दिस, सो वी नीड एन एक्स्ट्रा पेज हियर. याद रखिएगा कोई भी दो मैट्रिक्स स्पेस जो दिया हुआ है, ओके, क्लोज एंड ये मैप क्लोज होगा. तो हमारा मैट्रिक x क्रॉस y जो दिया हुआ है वो कुछ इस तरीके से है. तो ऑब्वियसली यहाँ होगा मैक्स dx, रिप्लेस कर देंगे. तो सपोज दैट एफ ऑफ x जो दिया हुआ है ये y की तरफ है.
ये दोनों मान लेते हैं कॉन्टिन्यूअस मैप है। सो ये ऐसे लिख सकते हैं, इट्स अ क्लोज मैप, तो वो कंटिन्यूस और ये क्लोज मैप। तो ये जो आया जी गिवन एफ एक्स बिलोंग्स टू जेड, ये भी क्लोज्ड हो गया। सो हियर जी ऑफ एफ एक्स मीन्स द मैप ऑफ जी restricted to fx. Okay, so option number 3 is correct. अब बोला k is a positive integer, consider the differential equation dy equal to y to the power 5k by k plus 2, then which of the following statement is true? So it has a unique solution which is continuously differentiable on 0 to infinity. Most of two solutions, infinity solution, no continuously differentiable solution. So number of solution के ऊपर पूछा गया है। So यहाँ पर dy dt equal to जो दिया हुआ है y to the power 5k by 5k plus 2, तो इसको मान लेते हैं एफ ऑफ एक्स वाई। ओके, डेल एफ डेल वाई निकाल लेते हैं। सो 5k बाई 5k प्लस 2 वाई टू द पावर थोड़ा सा, हाँ ये y टू दी पावर 5k प्लस 2 माइनस 1, ठीक है। सो 5k बाई 5k प्लस 2 y टू दी पावर माइनस 2 5k प्लस 2, यहाँ तक आ गए। इसको नीचे भी डाल सकते हैं, y 0 implies 0 is not defined. So it has no solution or infinite many solution, that is not unique solution. So option 2 and 1 and 2 are false. 3 और 4 में भी चेक करेंगे। Now y to the power minus 5k by 5k plus 2 dy equal to अगर dx लिया, इसको सॉल्व कर दिया, अगर इंटीग्रेट कर दिया बोथ साइड, सो y टू द पावर माइनस 5k प्लस 2 प्लस 1 माइनस 5k प्लस 2 प्लस वाट इक्वल टू x प्लस c। So y0 equal to 0, so c equal to be 0. So infinite many solutions, option 3 is correct and option 4 is wrong. So C is the correct answer.